Hello students. So we were solving questions based on ages. Also we completed the questions based on fraction in word problems. So continuing, students, see, I have written here 4 questions. The first question number 1 is the same as we discussed the last question in the last lecture. Okay students. So 10 years ago, father's age was 12 times as old as his son. 10 years hence, he will be twice as old as his son. Find their present ages. The similar kind of question we have already solved. Okay, so this is your homework. Okay, pause the video, note down the whole question and solve on your own. Now students, question number 2. I'll solve this question. I have written all the questions before only in order to save time. Okay students. Now let us start with the question number 2. Solution of question number 2. Student, see, the age of a father is twice the sum of ages of his 2 children. After 20 years, his age will be equal to the sum of ages of his 2 children. हो क्या रहा है यहाँ पर? एक फादर है और कंपेयर हो रहा है उसके 2 बच्चों के एजेस के सम से. ठीक है. द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. ओके स्टूडेंट्स, तो एक फादर के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की एज का जो सम है उससे फादर की एज कंपेयर हो रही है. तो बेटर है कि एंड में हमारे को दो बच्चों के अलग अलग एज तो नहीं पूछ रहा है ये क्वेश्चन में. अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़े, आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन. फाइंड द एज ऑफ द फादर. बिकॉज वी हैव टू कीप द 2 वेरिएबल्स ओनली, तो वी कैन टेक 1 वेरिएबल एज age of father and 1 variable as the sum of ages of his 2 children. Okay, so suppose present age of father be x years. मैंने मान लिया कि जो फादर है वो अभी x years का है and sum of ages of the 2 children be y. Sum of present ages of the 2 children y years. Student, 1 variable is x representing age of father and the variable y is representing the sum of ages. मतलब दोनों बच्चों की एज का टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ equation number 1. The age of a father is twice the sum of ages of his 2 children. That means x is equal to twice of y. You can see the age of father is means present की बात हो रही है. Twice the sum of ages that is y. So x जो है वो 2y के इक्वल है. आज की तारीख में x जो है वो 2 times y है. That means फादर की एज जो है वो बच्चों की एजेस के सम का दुगुना है. Clear? X is equal to 2y. Now, after 20 years, what will happen? After 20 years, the age of father will be increased by 20. Okay, very simple. So the age of father is gonna be x plus 20. But what will be the sum of ages of 2 children after 20 years? 20 साल बाद बच्चों की एजेस का सम कितना बढ़ जाएगा? देखो, दोनों बच्चे 20-20 साल बढ़ेंगे, क्योंकि 20 साल में एक बच्चा 20 साल बढ़ेगा और दूसरा बच्चा भी 20 साल बढ़ेगा. तो जो इनकी एजेस का सम है वो कितना बढ़ेगा? जस्ट थिंक, ये बढ़ेगा 40 years. ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर 20 years, क्वेश्चन सेज आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of ages of his 2 children. Means after 20 years age of father, that means x plus 20 is gonna be equal with the sum of ages. So sum of ages will be increased by 40. Okay, sum of ages अभी तो y है, बट 20 साल बाद क्योंकि दोनों ही बच्चे 20-20 साल पढ़ेंगे तो उनकी एजेस का सम 40 साल से बढ़ जाएगा. और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. Hence we got the 2 equations. Now we know how to solve these 2 equations. Very simple. Here x is directly in terms of y, so I can use substitution. So using equation number 1 in 2. Using equation number 1 in equation number 2, I can solve easily. Okay student,
So 2y plus 20 is y plus 40, and this y goes comes in left hand side. 2y minus y, and 40 minus 20 is 20 years. So hence we got our answer. The sum of ages of the two children is 20 years. So what will be the age of father, present age of father? Present age of father, x is equal to 2y. So 2 into 20, that is 40 years. क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल था ये, बस यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि सम ऑफ एजेस कितना इंक्रीज होगा. सी क्वेश्चन नंबर 3. I am 3 times as old as my son. Someone is saying I am 3 times as old as my son. I am not saying, someone is saying, okay, I am 3 times as old as my son. I don't have a son now. Okay, so 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son. How old am I? How old is my son? Now question is in the form, someone is saying I am 3 times as old as my son. Okay, so suppose the age of someone be x and the age of someone's son is y. So what will be the equation? I am 3 times as old as my son. The equation will be x is equals to 3y. क्लियर? क्योंकि जो someone है x, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा एज्यूम कर सकते हो, सपोज एज ऑफ माइन भी x. ठीक है, so x is equals to 3y, and 5 years later what will happen? X plus 5 shall be 2.5 times. So x plus 5 is gonna be 2.5 means 5 by 2. Okay, 5 by 2 times as old as my son. As old as my son. अब इस टाइम तो सन एक ही है, तो 5 साल बाद बच्चा भी 5 साल ही बढ़ेगा. तो द न्यू इक्वेशन विल बी x plus 5 is equal to 5 by 2 times y plus 5. Now we have two equations. We know how to solve the two equations. Okay student, this question is also I am leaving for you only. Okay, क्यों? क्योंकि हमने ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कर रखा है. मैंने यहाँ लिख जरूर लिए ताकि एज पे आपके पास इनफ क्वेश्चंस हो जाएं. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 4 और मैं करा देता हूँ आपको. इसके साथ हमारा एज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन आप करना, ये क्वेश्चन आप करना. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. नाउ हियर आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were. आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है. तो let us suppose present age of आफ्ताब. हमेशा present age ही एज्यूम करें आप. Let us suppose present age of आफ्ताब is x years. मान लिया कि अभी जो है आफ्ताब x years old है, and present age of his daughter is y years. मान लिया आज की डेट में आफ्ताब x years का है, तो उसकी डॉटर जो है वो y years की है. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग 7 years ago I was 7 times as old as you were. आफ्ताब is saying, okay, आफ्ताब कह रहा है कि I was 7 times as old as you were 7 years ago. तो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो हम आ जाते हैं 7 साल पहले. 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब क्या होने वाली है? क्योंकि अभी x years का है, तो 7 साल पहले के लिए आप इसमें से 7 years माइनस कर दो. क्लियर? तो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब इज x minus 7, एंड आफ्ताब इज सेइंग दैट I was 7 times as old as you were then. तो जो आफ्ताब था यानी कि x minus 7 वो क्या था? वो 7 times था किसके? बेटी की एज के. तो बेटी की एज 7 times 7 years बिफोर कितनी रही होगी? y minus 7. सो हेंस वी गॉट द इक्वेशन. ओके, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7y minus 49 एंड x minus 7y इज इक्वल टू, अगर इसको अपन इसी तरफ रखें तो 49 minus 7 plus 42 is equals to 0, and that's your equation number
1, no problem at all. Age of Aftab 7 years before, okay, 7 times age of his daughter. Now the next case is again Aftab saying 3 years from now I shall be 3 times as old as you. अब आफ्ताब कह रहा है 3 साल बाद की बात. Also Aftab is saying x plus 3, that means 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. That means 3 times y plus 3. See, this is Aftab age 3 years from now. This is daughter's age, Aftab's daughter's age 3 years from now, आज से 3 साल बाद. And Aftab is saying that I shall be 3 times as old as you will be. Clear? So what we'll get here, x plus 3 is equals to 3y plus 9 or x minus 3y, and 3 minus 9 is minus 6 is equals to 0. That's your equation number 2. Now it's your work to solve these two equations and get the values of x and y, that means age of Aftab and also age of his daughter. Okay students, now ये 4 क्वेश्चन हो गए एज पर. इसी के साथ मैं एज वाले टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ और हम नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक. और अब लेते हैं हम टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डिजिट नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें. 2 डिजिट नंबर 6th या 7th क्लास का बच्चा भी बड़े आसानी से बता देता है कि 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 से लेके 99 के बीच में लाई करते हैं. स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 and the greatest 2 digit number is 99. Now for example 12 is a 2 digit number. See, in the expanded form I can write 10 into 1 plus 2. 12 को मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में 10 इंटू 1 प्लस 2 लिखा. एक्चुअली मैंने किया मैंने ये किया, जो इसका टेंस प्लेस था उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा और जो वंस प्लेस था उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करा. मतलब कुछ भी नहीं करना, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना मान लो और बीच में प्लस का साइन लगा दिया. ऐसे ही किसी भी 2 डिजिट नंबर को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल 93, ये छोटे क्लासेस में सिखाते हैं. 10 इंटू 9 प्लस 3. 47 को लिखना है 10 इंटू 4 प्लस 7. तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जो भी नंबर का टेंस प्लेस है आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें क्या ऐड कर दो, नंबर का वंस प्लेस. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू राइट वाई एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर whose ones place is x and tens place is y. So how I will write it? I will write it as 10y plus x. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. ये 2 डिजिट नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म है. ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा एक 2 डिजिट नंबर को बताता है. इस नंबर की खास बात ये है कि जो x है वो इस नंबर की क्या है, वंस प्लेस है. वंस प्लेस या वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, सबका एक ही मतलब है. y जो है इस नंबर का टेंस प्लेस है या टेंस डिजिट है. टेंस डिजिट. क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, मान लो मैं इस नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब x को रिप्लेस कर दूं y से और y को रिप्लेस कर दूं x से. सो द न्यू नंबर विल बिकम 10x प्लस y in the expanded form and here xy, y in the place of yx. ओके, फॉर एग्जांपल 12 को अगर मैं 21 बना दूं तो 10 इंटू 2 प्लस 1 बन जाएगा. वेरी सिंपल, no rocket science at all. Now let us take one question of 2 digit number. The first question is the sum of digits. The sum of digits of a 2 digit number of a 2 digit number is 15. The number obtained by reversing the order of digits या interchanging the digits. एक ही बात है, interchanging the digits. Interchanging the digits exceeds the given number by 9. exceeds का मतलब होता है ज़्यादा होना. exceeds the given number by 9. find the number.
that means find the original number. Find the number. See students, question is saying the sum of digits. Okay, 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला स्टेप आप याद रखें, हम 2 डिजिट नंबर को एज्यूम कर लेते हैं. हम 2 डिजिट नंबर को अगर 10y(x + x) एज्यूम करते हैं तो इसका मतलब हमने 1 डिजिट को यहाँ पर x ले रखा है और 10 डिजिट को y ले रखा है. ठीक है. सो सपोज ओरिजिनल नंबर b, मान लिया जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है 10y + x. क्लियर. सो लिख देते हैं यहाँ पर x क्या है 1's प्लेस या 1's डिजिट एंड y क्या है, y है 10th डिजिट. क्लियर. नाउ अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा हम इक्वेशन में फॉर्म कर लेते हैं. मैंने पहले कहा था वर्ड प्रॉब्लम्स में बस क्वेश्चन का फील समझना है एक बार कि क्वेश्चन क्या रहा है आपको. द सम ऑफ डिजिट्स मीन्स x + y, क्योंकि डिजिट्स ही तो हैं x और y. एक 1's डिजिट एक 10th डिजिट है, तो द सम ऑफ डिजिट्स दैट मीन्स x + y इज 15. वी गॉट द इक्वेशन नंबर 1. नाउ अगेन क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सी स्टूडेंट्स, ये था हमारा गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर. व्हाट इफ आई इंटरचेंज द डिजिट्स? दैट मीन्स आई replace y as x, I replace y with x and x with y. So the new number will become 10x + y. 10x + y. So the new number will become 10x + y and the new number is exceed, मतलब ये जो नंबर है ये ज़्यादा है, exceed the given number by 9. So the new number that is 10x + y is greater than the original number by 9 or exceeds the original number by 9. See student, I am again explaining. This is our new number. When I interchange the digits of the original number, so I got the new number 10x + y. Now this number is equal to 9 plus original number. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. It means ये जो नया नंबर है जो कि हमारे को डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर मिला है, ये ओरिजिनल नंबर से +9 ज़्यादा है. आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन मेकिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, एक ही बार में इसको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें. सो 10x + y इज इक्वल टू 10y + x + 9 एंड आई कैन राइट दैट. अगर मैं x को इधर ले आऊँ तो 9x - 9y इज इक्वल्स टू 9 और डिवाइडिंग बाय 9 I will get x - y is equals to 1 and that's your equation number 2. Now solving 1 and 2, I will get the values of x and y. Solving equation 1 and equation 2, क्या करें दोनों इक्वेशन के साथ ऐड कर दिया जाए ताकि y एलिमिनेट हो जाए. So adding we will get x + x 2x is equal to 15 + 1 16 or the value of x comes out to be 8 and if putting in equation 1, what I will get 8 plus y is equal to 15 or the value of y is 7. So हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड द नंबर कौन सा, ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर जो था हमारा वो क्या हो जाएगा, क्या एज्यूम किया था हमने ओरिजिनल नंबर को एज्यूम किया था 10y + x. So just put these values 10 into 7 plus 8. So our original number is 78. Okay, you may verify your answer on your own. See, 78 is the answer na. See, the sum of digits must be 15. 7 plus 8 15. Now the number obtained by interchanging the digits, what I will get if I interchange 78 digits, I will get 87. Should be greater than the original number by 9. So 87 जो है वो 78 से 9 ज़्यादा है या नहीं है? Yes, both conditions are satisfied. That means our answers are correct. So hence we got the answer. Taking one more question on this concept.
the sum of students, it is similar type of question, so you will solve this question. The sum of digits of a two digit number, the sum of digits of a two digit number is 11. इस एक टू डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 11 है. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. बिल्कुल डिट्टो ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, the digits of given number exceeds that number by 63. Exceeds that number by 63. Find the numbers. Find the number. You have to try this one. Okay, student. Question is clearly saying that the sum of the digits is 11. As in the last question, it was 15. The number obtained by interchanging the digits is increased by the original number by 63. Okay. Now, two questions are completed. Let me take a final one and solve it. I will solve this. Okay. The sum of a two digit number, and number obtained by reversing the digits, is 99. If the digits of the number differ by 3, find the number. If the digits of the number differ by 3, find the number. Find the number. Okay. Now, this is the question we have to solve. Now students, read it carefully. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें डिजिट्स का सम दे रखा था, बट यहाँ कहानी कुछ और है. यहाँ क्या दे रखा है? द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स. मतलब नंबर है और एक और नया नंबर जो कि इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने पर मिलेगा, उन दोनों नंबर्स का सम दे रखा है. ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द सेम वे. सपोज ओरिजिनल नंबर बी 10x प्लस वाई. हमने मान लिया जो ओरिजिनल नंबर था वो हमारा 10x प्लस वाई था. तो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी कैन से द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर दैट इज 10x प्लस वाई विथ the number obtained by reversing the order of the digits. The number obtained by the reversing the order of digits. मतलब न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 10y plus x, and this sum is equal to 99. Clear? Now here 10x plus x, I can write 11x. 10y plus y, it will become 11y is equals to 99. Or I may write as x plus y is equals to 9. Just divided 11 from both of sides. Okay, 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. So I got equation number 1. Now students, carefully see what question says in the next part. If the digits of the number differ by 3. जो नंबर के डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं क्या नंबर की? डिजिट्स है नंबर की x एंड y. ये बोल रहा है डिजिट्स जो है उनमें 3 का डिफरेंस है.
ना यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डिजिट्स का डिफरेंस 3 है, तो हमें क्या पता कौन सी डिजिट बड़ी है। यूनिट डिजिट भी बड़ी हो सकती है तो टेंस डिजिट भी बड़ी हो सकती है, वंस प्लेस भी बड़ा हो सकता है तो टेंस प्लेस भी बड़ा हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम किसी भी एक को लेके देखेंगे, या तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट, अगर x बड़ा होगा तो हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बनाएंगे इक्वेशन, और y बड़ा होगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 बनाएंगे। ओके, जहां से हमारे को करेक्ट आंसर मिलेगा वही केस जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। सो लेट अस टेक हियर y ग्रेटर देन x। ओके स्टूडेंट, मैंने मान लिया जो y है वो बड़ा है x से, y मतलब टेंस प्लेस। ओके, सो the new equation will be y minus x is equals to 3. I assumed the tens place of the number is greater than the digit at ones place. Okay, now solving 1 and 2, what I will get? Solving equation number 1 and equation number 2. क्या किया जाए इन दोनों इक्वेशंस के साथ? x प्लस वाई 9 है और y माइनस एक्स 3 है, ऐड कर दिया जाए सो दैट x x विल गेट कैंसिल आउट। बट स्टूडेंट, इफ यू ऑब्जर्व हियर, व्हेन आई एम एडिंग दिस, द वैल्यू ऑफ y इज कम्स आउट टू बी 6। ओके, सो y plus y 2y, x and x get cancel out, x and minus x get cancel out, 9 plus 3 is equals to 2. I just added the equations 1 and 2, so the value of y is 6. Similarly, if I put this value in equation number 1, putting y is equals to 6 in equation number 1, I will get the value of x now. So x plus 6 is equals to 9 and x is equals to 3. Clear? Now what will be my original number? Original number is gonna be what? हमने नंबर को एज्यूम किया था 10x plus y, so 10 into 3 plus 6, 36 is gonna be our answer. ठीक है। हाँ स्टूडेंट, आपके मन में आ रहा होगा ये चीज़, और आना भी चाहिए कि सर y ग्रेटर देन x लिया, अगर हम x ग्रेटर देन y लेते तो क्या होता। हम ऐसा भी तो ले सकते थे कि जो नंबर का टेंस प्लेस है वो वंस प्लेस से छोटा है, तो उस केस में क्या फ़र्क पड़ता। देखो मैं आपको रफ में ये चीज़ बताता हूँ कि उससे क्या फ़र्क पड़ता। सी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को x माइनस वाई 3 लेता, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता, उस केस में मुझे x6 मिलता, और जब x6 मिलता तो मुझे y3 मिल जाता, तो उस केस में मेरा नंबर हो जाता क्या, 63। तो यहाँ ऐसा लगता है कि ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, और हाँ ये दोनों आंसर 100% करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आंसर जो हैं वो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी 11, हेयर 6, sorry, the sum of the number 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 99. Here see, 63 plus 36, I will get 99. And also the next condition is the digits must be differ by 3, so the difference of 6 and 3 is 3. In both of the answers it is valid now. So yes, I took the case when y greater than x. I can also take the case when x greater than y, and I can tell the one more answer. Okay, so also we may take x greater than y, then we will get 63. Okay, so yes, both answers are possible, 36 and 63. Okay, so यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट था। Now इसी के साथ the problems based on 2-digit numbers are over.
Now students, let us take some questions on miscellaneous. Miscellaneous means किसी भी टॉपिक पे वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है. देखो इसके बाद जो है अपने को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस पे ध्यान देना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है एक तो स्पीड टाइम डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा. एक ही क्लास के अंदर अपन स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे और टाइम एंड वर्क को भी डिस्कस करेंगे. बट इसके अलावा कई मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं, बट आपको इक्वेशंस फॉर्म करना आना चाहिए उनसे. मतलब लैंग्वेज को पढ़ के समझ में आना चाहिए आपको कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. नाउ जैसे कि अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल. ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना अभी, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं. दिस क्वेश्चन इज सेइंग 4 chairs and 3 tables. 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100. 4 चेयर और 3 टेबल की टोटल कॉस्ट दे रखी है 2100 रुपीज. एंड 5 chairs and 2 tables. 5 chairs and 2 tables costs rupees 1750. Rupees 1750. Find the cost of a chair and a table. Find the cost of a chair and a table. See students, this kind of questions are very simple. यहीं से समझ में आ जाता है कि क्या एज्यूम करना है. एक चेयर की और एक टेबल की कॉस्ट हमको निकालनी है, तो हम एक चेयर की और एक टेबल की कॉस्ट को ही एज्यूम कर लेते हैं. सो क्या बन जाएगा? सपोज कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी रुपीज X एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी रुपीज Y. मैंने मान लिया कि एक चेयर जो है वो X रुपीज की है और एक टेबल Y रुपीज की है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 chairs, what will be the cost of 4 chairs? Because cost of 1 chair is rupees X, cost of 4 chairs is gonna be 4X, 4 times X, क्योंकि एक की X रुपीज तो 4 की 4X. क्लियर. प्लस 3 tables तो 3Y. This is cost of 4 chairs, this is cost of 3 tables, and if I add these two I will get the total cost of 4 chairs and 3 tables, and it is given to you rupees 2100. So hence we got the equation. Also the next equation बिल्कुल सेम ही है. 5x plus 2y is equals to 1750. Now solving these two equations you can get the answer. It's your work to solve the equations. Okay. Now come on the next one. So ये कॉस्ट पर आइटम की कॉस्ट जिसमें एज्यूम करनी पड़ती है आपको, इस तरीके का एक क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन लेते हैं अब इस तरीके का. देखिए आप, a leading library, lending library has fixed charge for the first 3 days. फर्स्ट 3 days मतलब एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो फिक्स है. ठीक है. आगे क्वेश्चन सेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. एंड एन एडिशनल चार्ज for each day thereafter. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके बाद हर डे का चार्ज होता है. किसके बाद? 3 दिन के बाद. 3 दिन के बाद पर डे का चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है लाइब्रेरी का. 3 दिन का तो फिक्स है, बट चौथे दिन से क्या होता है कि पर डे का एक चार्ज जो है वो एडिशनली लग जाता है. नाउ क्वेश्चन सेज सरिता पेड
सरिता पेड ₹27, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. For a book kept for 7 days. सरिता ने 7 दिन के लिए एक बुक ली और ₹27 उसको पेमेंट करना पड़ा. वाइल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा. वाइल वन मोर Susi SUSY paid ₹21 for the book kept for 5 days. एक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी का रूल ये है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए तो आपसे फिक्स चार्ज लिया जाता है बुक का, और उसके बाद जितने दिन आपने एक्स्ट्रा बुक रखी उस हिसाब से आपका पर डे चार्ज बढ़ता जाता है. तो 2 गलती. एक थी ये सरिता को ₹27 पे करने पड़े 7 डेज के लिए, और सूसी को पेड करने पड़े ₹21 5 डेज के लिए. क्वेश्चन इज आस्किंग फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. जितना बड़ा ये क्वेश्चन लिखने में है उससे भी छोटा कॉन्सेप्ट है इसका. फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. नाउ वेरी सिंपल. एक तो है फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, मान लिया X रुपीज़ है. ओके. और 3 दिन के बाद जितने दिन भी आप एक्स्ट्रा बुक रखते हो उसका जो वेरिएबल चार्ज है उसको मान लिया Y रुपीज़ पर डे का. ओके. So suppose fixed charge is ₹X for 3 days. Okay. Now extra charge per day इज ₹Y. मतलब एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कब? 3 दिन के बाद. ये ध्यान रखें, 3 दिन के बाद से लगना स्टार्ट होता है चार्ज. सो अब देखो सूसी के लिए क्या होता है और इसके सरिता के लिए क्या होता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सुरीता शी पेड ₹27. तो इस 27 में क्या क्या इंक्लूड होगा? फिक्स चार्ज भी इंक्लूड होगा और वेरिएबल चार्ज भी इंक्लूड होगा. ओके. तो सुरीता ने 3 दिन के लिए तो पे करे होंगे फिक्स चार्ज ₹X प्लस. अब कितने दिन एक्स्ट्रा बुक रखी उसने? 3 दिन के, तो ये ₹X फिक्स दे दिए ना उसने. एक्स्ट्रा कितने दिन रखी बुक? एक्स्ट्रा दिन रखी उसने 4. 3 दिन के ₹X तो फिक्स है. अब 7 दिन क्योंकि बुक रखी तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी बुक. ठीक है. तो 4 दिन के जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो Y रुपीज़ पर डे के हिसाब से टोटल चार्ज लग जाएगा 4 टाइम्स Y. ये बन गई हमारी इक्वेशन. X प्लस 4Y फिक्स चार्ज प्लस 4 डेज का वेरिएबल चार्ज जो कि पर डे चेंज होता है, मतलब पर डे का चार्ज है. तो X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27. ये हो गया 7 डेज का टोटल चार्ज जो कि किसने पे किया? ये पे किया सरिता ने. एंड सिमिलरली सूसी ने क्या पेड किया? सूसी ने पेड किया X फिक्स चार्ज. तो इसके लिए भी सेम ही है 3 दिन का. बट इसने कितने दिन एक्स्ट्रा रखी बुक? केवल 2 ही दिन तो रखी क्योंकि 5 डेज रखी इसने टोटल बुक. सो X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 21. नाउ solve the 2 equations and get the fixed charge and variable charge. Okay, concept clear. तो ये क्वेश्चन लिया हमने किस पे बेस्ड? ये क्वेश्चन लिया हमने फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन. इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है. तो हमारे देखो एज पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. अब लास्ट एक क्वेश्चन और लेंगे हम आज की क्लास का. ये बिल्कुल लास्ट होने वाला है आज का क्वेश्चन. ठीक है. और ये क्वेश्चन हम लेंगे बेस्ड ऑन डिनोमिनेशन समझते हो? जो आप रुपीज़ यूज़ करते हैं, जैसे 10 रुपीज़ का नोट है तो 10 एक डिनोमिनेशन है, 100 रुपीज़ का नोट है तो 100 एक डिनोमिनेशन है. ओके. अच्छा क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. अ मैन हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन्स. ये बहुत पुराने ज़माने की बात है जब 20 पैसा कॉइन्स चलते थे. A man has only
20 पैसा coins and 25 पैसा coins and 25 पैसा coins in his purse. In his a man has only 20 paisa coins and 25 paisa coins in his purse. Okay. Now, if he has 50 coins in all, if he has 50 coins in all, totaling rupees 11.25, totaling rupees 11.25. How many coins of each kind does he have? How many coins of each kind does he have? Now students, see, एक मैन है जिसके पास दो ही तरीके के सिक्के हैं, या तो उसके पास 20 पैसा के सिक्के हैं या फिर उसके पास 25 पैसा के सिक्के हैं. ठीक है, एक तो आपको पैसे का रुपीज़ में कन्वर्जन आना चाहिए. ओके, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है. नाउ इफ अ मैन हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन्स एंड 25 पैसा कॉइन्स, ओके, इफ ही हैज़ 50 कॉइन्स इन ऑल, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है उसके पास वो है 50. तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि 20 पैसा के तो उसके पास एक्स कॉइन्स हैं और 25 पैसा के उसके पास वाइस कॉइन्स है. एक्चुअली मुझे यही निकालना है लास्ट में. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव, कितने कितने कॉइन उसके पास कितने डिनोमिनेशन के हैं. ओके, तो सपोज ही हैज एक्स कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड ये एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स है एंड वाई कॉइन्स आर ऑफ डिनोमिनेशन 25 पैसा. नाउ स्टूडेंट, वेरी सिंपल, ही हैज टोटल 50 coins in all. So my first equation is gonna be very simple. X plus y is equals to 50. The number of coins of 20 paisa, the number of coins of 25 paisa, the total number of coins is equal to 50. So equation number 1 बनाना बहुत ही सिंपल था. Now important thing, इन ऑल टोटलिंग रुपीज़ 11.25. नाउ ये बोल रहा है कि जो उसके पास टोटल अमाउंट है, वैल्यू ऑफ अमाउंट जो है वो है 11 रुपये 25 पैसे, 11.25. नाउ स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को रुपीज़ में रखना चाहते हैं या पैसे में रखना चाहते हैं, क्योंकि हम पैसे को पैसे से इक्वेट कर सकते हैं और रुपीज़ को रुपीज़ से इक्वेट कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, हम इस टोटल को हम पैसा में ही सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास एक्स कॉइन्स हैं, ओके, एक्स है नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने के, 20 पैसा के. तो अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू पूछूं पैसा में, तो मुझे पास अमाउंट कितना है, टोटल पैसे कितने हैं, मतलब उनकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्स तो हो गया डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन, मतलब कि एक्स तो कॉइन्स की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू हो गई, बट उसकी जो अमाउंट में वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 20x. फिर बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 1 रुपये के 10 सिक्के हैं तो टोटल आपके पास 10 रुपये है ना. 5 रुपये के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं तो आपके पास 50 रुपये है ना. तो बिल्कुल सीधे सीधे बोल रहा है कि अगर 20 पैसा वाले आपके पास x सिक्के हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 20x. काय में है ये, पैसा में है. ओके स्टूडेंट्स, 20x पैसा. सिमिलरली 25 पैसे के कितने कॉइन एज्यूम किए थे हमने, y. सो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू इन अमाउंट ऑफ 25 पैसास कॉइन्स. तो ये बन जाएगा आपका 25 टाइम्स y. तो ये पैसा जो उसके पास अमाउंट में है वो है किससे, 20 पैसे के कॉइन से, और ये है 25 पैसे के कॉइन से. तो इट शुड बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ही हैज़ इन पैसा, क्योंकि यहाँ भी मैंने पैसे में रखा है, यहाँ भी पैसे में रखा है, बट हमको ये दे रखा है रुपीज़ में.
तो इसको तो चेंज करना पड़ता है। रुपीज़ को पैसे में चेंज करने के लिए हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 100 से। तो 11.25 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने बना दिया 1125। इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो पॉइंट जो है वो 2 प्लेसेस आगे फिक्स शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व द 2 इक्वेशंस एंड गेट द आंसर। क्लियर? चलो इसको मैं कर ही देता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किससे करें? बाय एलिमिनेशन कर लें। बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन से कर रहे हैं अभी, बाय एलिमिनेशन। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 20 से। एंड इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को। क्लियर? क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 20x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 20 इंटू 50 1000। ओके, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 20x plus 25y is equals to 1125. As I get subtract these two, it is minus 5y and it is equals to minus 125. Okay. 1000 में से 1125 माइनस करा है, 1000 में से 1125 को माइनस करा है, तो माइनस का 125 बचना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ y इज गोना बी 25. Okay. Now putting in any of the two, putting in equation number 1, what I will get? I will get the x plus 25 is equals to 50, or x is also 25. That means he has 25 coins of each kind. He has 25 coins of each kind. 20 पैसे के भी उसके पास 25 कॉइन्स है और 25 पैसे के भी उसके पास 25 ही कॉइन्स है। ये हुआ हमारा आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्पीड टाइम डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।